other example, we can make this binomial surd by putting one more. Not only this one, we can put it like this is another, this is another one. For trinomial, we can write it like this: 2. We can use the plus sign, plus sign. This is trinomial and tetranomial. It depends if we need that one. If we need, then we can use this one. And okay. Once again, just for the revision, product of the two surds. Product of the two surds, I will revise for you. Okay, suppose we have this one, binomial surd A plus B, A under radicand A plus under radicand B. The another rationalization form is under radicand A minus under radicand B. So we can say this is the conjugate of this one, and this factor is the conjugate of this one. Mean, in other words, both are conjugate of each other. These both are conjugate of each other. Like if you will take out exercise 4.4, sum number 2, please take out exercise 4.4, sum number 2, page number 94. Page number 94. And orally I'll solve some question. First I will do for you 3 plus under radicand 7. Now this is binomial surd. This is binomial surd. It is having this number and this number. So here if you could little view on this, you will find this is a rational number. This is rational number and this is surd. But it makes no harm. Yesterday I told you that in binomial you can put 7 plus under radicand 3. Now here two surds are there. This is a binomial surd, whether it could be like this or whether you are having rational number is there. It makes no harm. ये भी binomial surd है, ये भी binomial surd है. इस binomial surd में ये surd है, ये भी surd है. जबकि इस binomial surd में ये एक rational number है और एक ये surd है. Okay. If I will solve this one for you, 3 plus under radicand 7, and the question is find the conjugate. Very simple, very easy. The conjugate of 3 plus under radicand 7 is very simple, 3 minus under radicand 7. Up to you if you want to, if you want to write this statement, good. Don't want to write, simply आप इसे लिख सकते हैं 3 plus और इसके बाद वाला स्टेप लिख सकते हैं is equal to 3 minus under radicand 7, या simply इस पर लिख दीजिए conjugates आप लिख सकते हैं. अगर ये clear है तो then I will move to sum number 3. If it is clear, then I will move to, please show me the indication. If it is clear, beta, please show me the indication it is clear. Okay, fine. Okay. Now I'm moving to the next topic. Next one is sum number 2. If x is equal to if x is equal to 2 under radicand 3, find 1 over x. Find 1 over, if x is equal to 2 minus under radicand 3, find 1 over x. Question number 3, part 1, 2 are very similar. So if I will do one part, then it means part 2 is similar, and 3 is also similar, but it needs some explanation more. So I will solve for you. Okay. Here x we have 2 minus under radicand 3. It means it's binomial surd. In this binomial surd, 2 is a rational number, whereas 3 under radicand 3 is a surd. So we can say it is a surd, binomial surd, and operation is in between the surd is, this is minus operation. So x value we have, where x 1 over x we need to find.
we need to find 1 over x. So what we will do, we'll suppose this, let x we have in hand, x is 2 minus under radicand 3. We will suppose here 1 over x is equal to, as we have supposed x is equal to this value, हम इसे सपोज करें कि अगर हम इसको 1 over x ले लें तो हम इस वैल्यू को भी, इस बाइनोमियल सर्ड को भी हम 1 over x 1 over वैल्यू की फॉर्म में ले लेंगे. वी कैन राइट इट 2 माइनस अंडर रेडिकैंड 3. हम इसे भी इसी तरह लिख लेंगे 2 माइनस अंडर रेडिकैंड 3. और फर्दर हम क्या करेंगे, 1 over 2 माइनस अंडर रेडिकैंड 3, वही मेथड यूज करेंगे. हम इसके कॉन्जुगेट सर्ड से मल्टीप्लाई कर देंगे और कॉन्जुगेट से ही से डिवाइड भी कर देंगे. 2 प्लस अंडर रेडिकैंड 3 इसका कॉन्जुगेट है, इसे मल्टीप्लाई कर दिया और अब डिवाइड करें, डिवाइड की लाइन लगा कर 2 प्लस अंडर रेडिकैंड 3. अब आप न्यूमरेटर से न्यूमरेटर को मल्टीप्लाई कर दें. 1 मल्टीप्लाई बाय दिस यू विल गेट द सेम वैल्यू. 1 लिखने की कोई जरूरत नहीं है, 2 प्लस अंडर रेडिकैंड 3. वेयर एज इधर वही फॉर्मूला यूज करेंगे, a माइनस बी, a प्लस बी वाला फॉर्मूला. तो 2 into 2 will get square of 2, minus plus minus under radicand 3, we can write it as it is. Now we can cancel this with this value. We'll get 2 plus under radicand 3 over 2 square mean 4 minus 3. So we have 2 plus under radicand 3 over 1. 1 is a rational number and it is understood value. So 1 is an understood value, so we can write it as it is. अगर सपोज करें इसका 1 इस तरह होता, 2 प्लस अंडर रेडिकैंड 3 माइनस 1 होता, तो फिर 1 तो अंडरस्टूड है लेकिन माइनस अंडरस्टूड हम कंसीडर नहीं कर सकते. फिर हमने क्या करना था, इस माइनस को अब न्यूमरेटर के साथ ले जाना था. तो फिर हमने इस तरह करना था, -1 2 प्लस अंडर रेडिकैंड 3 अगर होता तो फिर हमने माइनस को अंडर अब ले गए न्यूमरेटर के साथ और देन हमने इसे मल्टीप्लाई कर देना था. उसके साइन सिर्फ चेंज हो जाने थे, माइनस प्लस -2 माइनस प्लस माइनस अंडर रेडिकैंड हमारा ये आना था. लेकिन अभी हमारा जो आंसर है वो सिर्फ यही है. हम इसे कंसीडर कर लेंगे 2 प्लस अंडर रेडिकैंड 3. ये हमारा x डिराइव्ड हो गया 1 over x. 1 over x डिराइव्ड फॉर्म इज 2 प्लस अंडर रेडिकैंड 3. यहाँ हमने सपोज किया था, here we have supposed, whereas this is not supposed, this is derived value. ये हमारे पास derived value जो हमने इस सारे प्रोसेस में की है. तो x is equal to 4 minus under radicand 17, तो फिर ऑब्वियसली हमने उसको भी सपोज करना था 1 over x लेकर, और उधर भी हमने 1 over 4 माइनस अंडर रेडिकैंड 17 करके और फिर कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई और डिवाइड करना था. और फिर सारे इसी तरह प्रोसेस को लेकर हमारे पास जो डिराइव्ड वैल्यू आनी थी उसमें हमारे पास वो 1 over x वैल्यू आ जानी थी. इफ इट इज क्लियर देन आई एम मूविंग टू अनदर स्टेप. इफ यू हैव एनी क्वेरी प्लीज आस्क. मैं चैट बॉक्स देख बता दीजिएगा. Clear? Okay, fine. Fine. Let us move to the next question. Next question is, we have third part iska hai. Question number 3. It's third part. It's if x is equal to under radicand 3 plus 2, find x is plus 1 over x. This is we have. Dear student, see x is equal to under radicand 3 plus 2. Again हमारे पास बाइनोमियल सर्ड है, लेकिन इस बाइनोमियल सर्ड में एक तो हमारे पास स्क्वायर रूट, सेकंड स्क्वायर रूट 3 जो है वो तो हमारे पास सर्ड आ गई, लेकिन ये 2 जो है ये रैशनल नंबर है. हम फर्स्ट हमारे पास x हमारे पास एग्जिस्ट कर रहा है, हम पहले 1 over x को फाइंड करेंगे. मैं फिर बता रहा हूं, x हमारे पास एग्जिस्ट कर रहा है. क्या है x की वैल्यू है, ये गिवन है अंडर रेडिकैंड 3 plus 2, मतलब ये बाइनोमियल सर्ड है. हम फाइंड करेंगे सबसे पहले 1 over x, फिर हम इसे x में ऐड कर लेंगे. लाइक सपोज करते हैं, लेट
1 over x is equal to 1 over under radicand 3 plus 2. Then हम इसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देंगे. अंडर रेडिकैंड 3 minus 2, then under radicand 3 minus 2. We'll multiply numerator with the numerator. 1 multiplied by this value, we will get the same value under radicand 3 minus 2. Whereas again, we will use the same formula, a square minus b square. A into a mean under radicand 3 into under radicand 3 will get under radicand 3 square plus with minus and square of 2. Then under radicand 3 minus 2 over cancelling this square with this, we'll get 3 minus 4. And now we have under radicand 3 minus 2 and minus 1. I told you in the previous question, अब हमारे पास शुड कंसीडर नहीं करेंगे, हमारे पास माइनस आ गया. इस -1 की वजह से हम इस -1 को इस न्यूमरेटर के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो इनके साइन चेंज हो जाएंगे. इट कुड बी लाइक दिस, -1 अंडर रेडिकैंड 3 minus 2, then we will get minus under radicand 3 and minus minus plus 2. Now we have both the values. It is like this. अब हमारे पास 1 over x के इक्वल आ गई है, 1 over x आ गई है, माइनस अंडर रेडिकैंड 3 प्लस 2. हमारे पास x पहले एग्जिस्ट कर रहा था, 1 over x हमने डिराइव कर ली. नाउ हम इस फॉर्मूला को यूज करेंगे. ये क्या है हमारे पास, x प्लस 1 over x इज इक्वल टू, x क्या है हमारे पास, अगेन हम वापस चले जाएं, x है हमारे पास अंडर रेडिकैंड 3 प्लस 2 और दूसरी वैल्यू क्या है हमारे पास, दूसरी वैल्यू, लेकिन ऑपरेशन क्या है दरमियान में, प्लस है. अगर ऑपरेशन प्लस हो तो मेक श्योर हम वैल्यूज को एज इट इज लिख सकते हैं, लेकिन आप देखिएगा कि इसके साथ माइनस साइन इंडिकेट कर रहा है, माइनस साइन इंडिकेट कर रहा है. तो इस माइनस की वजह से मैं इसको भी पैरेंथेसिस दे देता हूं ताकि हमें किसी भी तरह की कंफ्यूजन का सामना ना करना पड़े, हमें किसी भी तरह की कंफ्यूजन का सामना ना करना पड़े. तो कन्वीनियंट करने के लिए दोनों को पैरेंथेसिस कर दिया, दोनों फैक्टर्स को हमने पैरेंथेसिस कर दिया, दोनों बायनोमियल जो थर्ड्स थी हमने उनको पैरेंथेसिस कर दिया है. अब हम पैरेंथेसिस से इनको रिलीज कर देते हैं. अंडर रेडिकैंड 3 प्लस 2, प्लस से साइन चेंज नहीं होंगे तो माइनस अंडर रेडिकैंड 3 और प्लस 2 एज इट इज आ जाएगा. अब आप देखें तो ये प्लस अंडर रेडिकैंड 3 और माइनस अंडर रेडिकैंड 3 के ऑपोजिट साइंस हैं. नाउ वी कैन कैंसिल these two signs, whereas we'll get 2 plus 2 4. So by the end we have x plus 1 over x is equal to 4. 4 is our required answer. 4 is our required answer. I'm giving you 30 seconds. Revise it once again. Revise it once again. If it is clear, then show me through your indications. Okay. Okay. Fine. So मुझे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करना है, लेकिन मैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करने से पहले मैं चाहूंगा कि अगर आप मुझे जरा सा कोई इंडिकेशन दे दें कि क्वेश्चन नंबर 4, 5, 6 इनमें से कोई क्वेश्चन जो ऐसा क्वेश्चन है, क्योंकि ये ऑलमोस्ट सेम है. मैं सिंप्लीफाई से स्टार्ट करूंगा. सिंप्लीफाई क्वेश्चन नंबर 4. आई विल स्टार्ट फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 4. क्वेश्चन नंबर 4 इज it's 1 plus under radicand 2, denominator is under radicand 5. Sir, I want to ask you physics homework. बेटे by the end we can talk about this. ठीक है, मैं थोड़ा सा चले बताता चलता हूँ. राफिया मुझसे पूछ रही हैं फिजिक्स होमवर्क से कंसर्न. तो I have 2 times I sent the message to Sir Rafaqat, but he has not replied so far. But मैं खुद ही उसको reduce कर देता हूँ कि short questions जो हैं आप objective तो solve कीजिए, MCQs you can solve, but for short questions from each chapter I think 12 or 15 are fine. 12 to 15 it's enough. ठीक है, आप 12 कर लें, 15 कर लें, वो reduce कर दिया है मैंने. ठीक है, MCQs is very important, वो आप जरूर कीजिएगा. लॉन्ग स्किप कर दीजिएगा, लॉन्ग सिर्फ लर्निंग पे ले जाएं और शॉर्ट कर लें और MCQs कर लें.
आई होप इट इज क्लियर। ठीक है, इसको नोट डाउन कर लीजिएगा। थैंक यू। अंडर रेडिकेंड 1 प्लस अंडर रेडिकेंड 2 अंडर रेडिकेंड 5 प्लस अंडर रेडिकेंड 3 बायनोमियल सर्ड न्यूमरेटर में भी है और बायनोमियल सर्ड डिनोमिनेटर में भी है। देन 1 माइनस अंडर रेडिकेंड 2 ओवर अंडर रेडिकेंड 5 प्लस अंडर रेडिकेंड 3। ओके अब अगर आप इफ यू लुक केयरफुली यू विल फाइंड कि हमारे पास एक ये टर्म है और हमारे पास एक ये दूसरी टर्म है। वन टर्म इज 1 प्लस अंडर रेडिकेंड 2 ओवर 1 अंडर रेडिकेंड 5 प्लस अंडर रेडिकेंड 3 और अनदर टर्म जो है हमारे पास इसी तरह की सिमिलर एक और टर्म है। अगर हम इसको सिंप्लीफाई इस तरह करते हैं कि हम इनको पहले इसका एलसीएम लें और फिर फर्दर सॉल्व करें तो उस तरह हम बहुत आगे तक चले जाएंगे, हमें काफी लंबा प्रोसेस करना पड़ेगा। तो हम इसको इस तरह करेंगे, हम पहले फर्स्ट टर्म का कॉन्जुगेट लेंगे और उससे मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे, देन हम सेकंड टर्म के कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे। ये काफी लंबा प्रोसेस होगा, मैं बड़ा स्लो करूंगा और इसको रेस कर दूंगा नेक्स्ट करने के लिए। तो फिर आप मेरे साथ रहिएगा ताकि जब मैं इसको रेस करूं तो आपको किसी तरह की कंफ्यूजन क्रिएट ना हो। पहली टर्म में 1 प्लस अंडर रेडिकेंड 2 ओवर अंडर रेडिकेंड 5 प्लस अंडर रेडिकेंड 3। You are familiar, multiply by its conjugate under radicand 5 minus under radicand 3 over under radicand 5 minus under radicand 3 plus now further मैं इसको लेके जा रहा हूँ 1 minus under radicand 2 over under radicand 5 plus under radicand 3 into इसका conjugate under radicand 5 minus under radicand 3 over under radicand 5 minus under radicand 3। हमारे पास यहाँ भी बाइनोमियल है, यहाँ भी बाइनोमियल है। व्हाट वी विल डू, हम इस बाइनोमियल को इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, न्यूमरेटर को न्यूमरेटर के साथ, और सिमिलरली हम इस न्यूमरेटर को इस न्यूमरेटर के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। ओके, वी कैन राइट इट लाइक दिस 1 प्लस अंडर रेडिकेंड 2 अंडर रेडिकेंड 5 माइनस अंडर रेडिकेंड 3। प्लीज मेरे साथ रहिएगा और नीचे हम वही फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, अंडर रेडिकेंड 5 square plus minus minus under radicand 3 square. Similarly here 1 minus under radicand 2 under radicand 5 minus under radicand 3। हम इन दोनों बाइनोमियल्स पर क्यों नहीं कर सके, क्योंकि दोनों के सिमिलर ऑपरेशंस हैं, माइनस माइनस। यहां भी कुछ इसी तरह का था, यहां प्लस और माइनस था, यहाँ प्लस और माइनस है, लेकिन हम इन्हें मल्टीप्लाई नहीं कर सकते। हम इन मल्टीप्लाई करने के लिए एक फॉर्मूला यूज करेंगे जो भी मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। और यहाँ हम सेम फॉर्मूला यूज करेंगे, अंडर रेडिकेंड 5 स्क्वायर प्लस माइनस माइनस एंड अंडर रेडिकेंड 3 होल स्क्वायर। सो इट कुड बी लाइक दिस। यहाँ हम फॉर्मूला यूज करेंगे ए, दिस इज ओके, दिस वैल्यू कुड बी माइनस। हम 1 से पहले इन दोनों टर्म्स को मल्टीप्लाई कर देंगे। फर्स्ट वील मल्टीप्लाई 1 विद बोथ दीज टर्म्स, 1 with under radicand 5 will get under radicand 5 simply, then minus 1 with minus minus under radicand 3, then हम plus 2 को इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, plus will get under radicand 2 into under radicand 5, we can write it under radicand 2 into under radicand 5, then plus minus minus under radicand 2 into 3 under radicand 2 into under radicand 3 over this will cancel, will get 5, this will cancel, will get 5 minus 3. Same we will do here, यहां भी हम वही फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। मैं जरा क्वेश्चन को देख रहा हूँ, 1 प्लस अंडर रेडिकेंड 2 ओवर 1 अंडर रेडिकेंड 5 अंडर रेडिकेंड 3। ओ यहाँ थोड़ी गड़बड़ हो गई है, ये माइनस साइन था, माइनस साइन था,
मुझसे मैंने उसको नोट करते हुए गलत नोट कर लिया, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ेगा, मैं इसके साइन सिर्फ चेंज करता जाऊंगा। अंडर रेडिकेंड 5 माइनस अंडर रेडिकेंड 3, सिमिलरली मुझे यहाँ साइन चेंज करना पड़ेगा, माइनस साइन, यहाँ इसको हम कॉन्जुगेट लेते हुए प्लस कर देंगे, और अब हमारे पास ये वैल्यू आ जाएगी 1 माइनस अंडर रेडिकेंड 2 ऑलरेडी रिटर्न इनटू 1 प्लस अंडर रेडिकेंड 5 जी, और माइनस प्लस अगेन वही एग्जिस्ट कर रहे हैं, तो अंडर रेडिकेंड 5 इससे कैंसिल हो जाएगा, सिमिलरली इससे कैंसिल हो जाएगा, लेकिन न्यूमरेटर कैसे बनेगा, 1 मल्टीप्लाई, पहले इस 1 से हम इन दोनों टर्म्स को मल्टीप्लाई कर देंगे, विल मल्टीप्लाई 1 विद बोथ द टर्म्स, विल गेट अंडर रेडिकेंड 5, देन बाय मल्टीप्लाइंग बाय फिर से मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस एंड 3, then minus and 2, then minus plus minus again under radicand 2 into under radicand 3 और 5 माइनस 3। मैं रिपीट करता हूं यहाँ क्वेश्चन को ताकि आपको अगर किसी तरह की कंफ्यूजन भी हुई है तो वो 1 प्लस अंडर रेडिकेंड 2 ओवर 1 ओवर अंडर रेडिकेंड 5 प्लस अंडर रेडिकेंड 3, 1 माइनस अंडर रेडिकेंड 2 अंडर रेडिकेंड 5 माइनस अंडर रेडिकेंड 3। हमने डिसीजन लिया कि हम इनको सेपरेटली, एक ये टर्म है हमारे पास और एक ये टर्म है, हमने डिसीजन लिया कि हम इस टर्म को इस कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई कर देंगे और डिवाइड भी कर देंगे। सिमिलरली इस ऑपरेशन को हम ऐसे लिखेंगे और इससे भी हम इसे इसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देंगे। अगर आपको लगे कि कुछ कंफ्यूजन चल रही है तो फिर आप क्या करेंगे, मतलब अगर इस थोड़ा सा मैस मेरे पास लिखते हुए थोड़ा हो रहा है तो फिर हम क्या कर लेंगे, इसको हम पैरेंथेसिस दे देंगे, इस तरह हमारे पास और थोड़ा कन्वीनियंट हो जाएगा कि हमारे पास ये दो चीज लहदा वैल्यू टर्म्स आ रही हैं। ओके, हमने इसको खत्म कर दिया और ये फर्दर मेरे पास ये स्टेटमेंट रह गई है, इसको हमने मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास आ गया अंडर रेडिकेंड 5 माइनस अंडर रेडिकेंड 3, और इन दोनों को नेक्स्ट स्टेप में हम एक कर लेंगे, अंडर रेडिकेंड 5 अंडर रेडिकेंड 3 प्लस 2, इस पर भी रेडिकल साइन है, इस पर भी रेडिकल साइन है और दरमियान में मल्टीप्लिकेशन है, तो हम इसे एक बना सकते हैं, 2 5 10 माइनस, सिमिलरली इधर भी यही कर लेंगे, 2 3 6 और रिमाइंडर है हमारे पास ओवर 2 प्लस विल राइट एज इट इज अंडर रेडिकेंड 5 प्लस अंडर रेडिकेंड 3 माइनस, हम यहाँ भी इन दोनों को हम कंबाइन, 2 5 10 and we write it like this, minus 2 3 6 over 2। अगर यहाँ तक क्लियर है तो मैं इसको रेस कर रहा हूँ सम से और फिर मैं नीचे वाली वैल्यू को दोबारा से नोट डाउन कर दूंगा। ओके फाइन बेटा फाइन। अब हम क्या करेंगे, आप जरा नोट कीजिएगा, आपके पास इधर डिनोमिनेटर और ये डिनोमिनेटर दोनों सेम डिनोमिनेटर हैं, हम इन दोनों सेम डिनोमिनेटर का एलसीएम ले लेंगे, एलसीएम आ गया 2, राइट, एलसीएम आ गया तो फिर हमारे पास न्यूमरेटर ऊपर आ जाएगा 5 अंडर रेडिकेंड 5 माइनस अंडर रेडिकेंड 3, हमें एज इट इज लिखना पड़ेगा क्योंकि दोनों डिनोमिनेटर सेम है, प्लस अंडर रेडिकेंड 10 -6 देन प्लस ये वाला प्लस अब वहां चला गया और फिर प्लस से साइन चेंज नहीं होंगे तो अंडर रेडिकेंड 5 प्लस अंडर रेडिकेंड 3 माइनस अंडर रेडिकेंड 10 और माइनस अंडर रेडिकेंड 6। हमारे पास कुछ इस तरह वैल्यूज डेवलप हो गई हैं और ये हम बिटवीन कर लेते हैं, इसको हम इन बिटवीन कर लेते हैं। अगर यहाँ न्यूमरेटर में आप देखेंगे तो आपके पास कुछ वैल्यूज जो है कैंसिल हो जाएंगी, लाइक +10 -10, then you can cancel +3 here। जी सर, ये +3 जी 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 बेटा, सर यहाँ पे 3 था सर, हाँ यस मैंने बेटे उसको कर दिया है, जी जी मैंने कर दिया, मैंने इसको 3, थैंक यू।
plus 3 cancel with minus 3, and then we have now plus under radicand 5 plus under radicand 5. We'll write it under radicand 5 प्लस अंडर रेडिकेंड 5. ये जस्ट डिटेल दे रहा हूँ, इस पर मैं इसको शॉर्ट कर सकता था. जो नेक्स्ट स्टेप में करूंगा अंडर रेडिकेंड 6 माइनस अंडर रेडिकेंड 6. अपना बंद कर दीजिए माइक, जिसका भी माइक ऑन है, 2. अब ये सिर्फ मैंने इसको स्टेप की कोई जरूरत नहीं थी, मैंने सिर्फ आपको डिटेल देने के लिए बता दिया. ये दोनों अंडर रेडिकेंड 5 अंडर रेडिकेंड 5 सिमिलर साइंस है, तो इन सिमिलर साइंस को हम कंबाइन कर सकते हैं. 2 अंडर रेडिकेंड 5 मीन इसके बाहर 1 लाई कर रहा है, मतलब इसके बाहर 1 है. सिमिलरली इसके बाहर भी 1 है. 1 plus 1, 1 plus 1 will write 2 under radicand 5. I hope ये बड़ा इंपॉर्टेंट स्टेप मैंने डिटेल में देकर क्लियर किया है. ओके. सिमिलरली माइनस, ये दोनों माइनस के सिमिलर साइंस हैं, तो ऐड अप हो जाएंगे. इसके बाहर भी अंडरस्टूड 1 है, इसके बाहर भी अंडरस्टूड 1 है, तो माइनस साइन विल रिमेन माइनस, साइन विल रिमेन माइनस, बट 1 plus 1 वैल्यू जो है वो प्लस हो जाएगी. अंडर रेडिकेंड 6 हो जाएगा ओवर 2. इसके फर्दर जो है ओके, थैंक यू. फर्दर हमारे पास ये स्टेप इस तरह बन गया कि ये 2 और ये 2, ये दोनों फिर हमारे पास बाइनोमियल सर्ड आ गई. फिर हमारे पास बाइनोमियल सर्ड आ गई, एक ये आ गई और एक ये सर्ड आ गई, बाइनोमियल सर्ड. अब इस दोनों सर्ड्स में 2 आपको कॉमन नजर आ रहा है. विल टेक 2 एज कॉमन, तो हमारे पास रिमाइंडर क्या आया, अंडर रेडिकेंड 5 माइनस अंडर रेडिकेंड 6 डिवाइडेड बाय 2. नाउ वी कैन कैंसिल दिस 2 विद दिस 2, and by the end we can get under radicand 5 minus under radicand 6. अब हमारे पास कोई टर्म नहीं है, इसको पैरेंथेसिस देने की जरूरत नहीं है, यही उसकी सिंपलीफाइड फॉर्म थी. हमने, मैं फिर क्वेश्चन की तरफ जाता हूँ. क्वेश्चन हमारे पास था 1 प्लस अंडर रेडिकेंड 2 डिवाइडेड बाय अंडर रेडिकेंड 5 प्लस अंडर रेडिकेंड 3 प्लस 1 माइनस अंडर रेडिकेंड 2 अंडर रेडिकेंड 5 माइनस अंडर रेडिकेंड 3 की सिंपलीफाइड फॉर्म हमने ये की है. आई होप इट इज क्लियर. अगर कुछ क्वेश्चन हैं तो आप मुझसे पूछ लीजिएगा, आप अपने चैट बॉक्स में क्वेश्चन पूछ सकते हैं. समझ नहीं आई, अगर आ गई है तो एटलीस्ट मुझे आपके क्वेश्चन आना आपके. सर प्लीज लास्ट स्टेप रिपीट लास्ट. जी बेटा, ऑन इज देयर. 5 minus 2 under radicand 6 कैसे है, ये 2 कैसे है? ओके, मैं रिपीट करता हूँ. ऑन ने भी ये क्वेश्चन पूछा, ये 2 कैसे आया. मैंने बताया था, ये स्टेप मैंने सिर्फ आप लोगों की खातिर डिटेल में बताया था, ये वाला स्टेप. इसी स्टेप को मैं दोबारा करता हूँ. यहाँ से हमारे पास जो रिमाइंडर आया वो कुछ इस तरह रिमाइंडर आया. तो हमारे पास रिमाइंडर कुछ इस तरह आया था, अंडर रेडिकेंड 5 और ये वाला रिमाइंडर 5 प्लस अंडर रेडिकेंड 5, फिर माइनस अंडर रेडिकेंड 6 और फिर ये वाला माइनस अंडर रेडिकेंड 6 और फिर डिनोमिनेटर में हमारे पास 2 आया था. और अभी बच्चा मैंने बताया था आप लोगों को कि इस रेडिकल साइन जो है, इस रेडिकल साइन से ये जो सर्ड है, इस सर्ड के बाहर कुछ नहीं है, लेकिन एक वैल्यू लाई करती है 1 वैल्यू इसमें लाई करती है. ठीक है. सिमिलरली इसके बाहर भी 1 वैल्यू लाई करती है. अब अगर हम इसको ऐड करेंगे तो ये जो 1 इसका रैशनल नंबर है जो यहाँ नहीं गिवन, ये हमारे पास है 2 वैल्यूज अंडर रेडिकेंड 5 है ना, अंडर रेडिकेंड 5 प्लस अंडर रेडिकेंड 5. तो हम इसको इस तरह ऐड अप करते हैं, ये इसके बाहर जो 1 रैशनल नंबर है, 1 जो बाहर रैशनल नंबर है, हम इन दोनों रैशनल नंबर्स को ऐड अप कर देते हैं. तो हमारे पास अंडर रेडिकेंड 5 उसी तरह रहेगा, जैसे हम लिखेंगे 1 + 1 इट विल बिकम 2 और फिर अंडर रेडिकेंड 5. इसको हम ऐसे भी कर सकते हैं, अगर आपके पास अंडर रेडिकेंड a प्लस अंडर रेडिकेंड a हो तो फिर हम इसे ऐसे कर सकते हैं 1 + 1 तो 2 अंडर रेडिकेंड a. सपोज इसके अगर ये इस तरह होता अंडर रेडिकेंड a माइनस अंडर रेडिकेंड b, तो देन तो हम कैंसिल कर सकते थे, फिर तो हमें फर्दर जाने की जरूरत नहीं है. सिमिलर साइन हो, अगर बच्चा सिमिलर साइन हो तो फिर इसके बाद एक रैशनल नंबर लाई कर रहा है और एक इधर रैशनल नंबर लाई कर रहा है, तो उन रैशनल नंबर्स की वजह से हम इन्हें ऐड अप कर सकते हैं. ये दोनों रैशनल नंबर ऐड अप हो जाएंगे और ये बन जाएगा जैसे यहाँ हो गए और से माइनस 1 अंडर रेडिकेंड 6 माइनस 1 अंडर रेडिकेंड 6. डोंट गेट कंफ्यूज, इसके बाहर जो है 1 रैशनल नंबर है.
हम उसे यूज ना करते, हमारे पास ये सिमिलर साइंस वाली टर्म नहीं आती। ये भी सिमिलर है, माइनस अंडर रेडिकेंड 6 माइनस अंडर रेडिकेंड 6। सिमिलर टर्म्स की वजह से हमने उन रैशनल नंबर्स को ऐड कर लिया, क्योंकि हमने इनको ऐड करना था। सिमिलरली यहाँ भी हमने वही प्रोसेस किया, तो यहाँ हमारे पास माइनस विल रिमेन एज इट इज, माइनस माइनस ऐसे ही रहेगा, लेकिन इसके बाहर जो वन रैशनल नंबर है, इसके बाद जो वन है, तो उसको हम ऐड अप करके 2 अंडर रेडिकेंड 6 लिख लेंगे। मतलब इनफैक्ट हमने इन दोनों को ऐड अप कर लिया, करने से हमारे पास आ गया 2 अंडर रेडिकेंड 5, और इन दोनों को माइनस अंडर रेडिकेंड 6 माइनस अंडर रेडिकेंड 6 को हमने ऐड अप किया, तो आ गया माइनस 2 अंडर रेडिकेंड 6 और 2 हमारा डिनोमिनेटर एज इज आया। फिर हम यहाँ 2 दोनों में कॉमन आ रहा है, हमारे पास इधर भी आ रहा है, 2 हमने कॉमन ले लिया, देन वी कैन राइट अंडर रेडिकेंड 5 माइनस आंसर दिया था अंडर रेडिकेंड 5 माइनस अंडर रेडिकेंड 6। फिर से पूछ सकते हैं अगर आपके पास कोई क्वेरी है तो प्लीज इंडिकेट कीजिए, अदरवाइज मैं टाइम है, आपकी क्वेरी अभी तक नहीं आ रही, रिमेनिंग टाइम है 12:51, मेरे पास 9 मिनट हैं, मैं आपको फर्दर क्वेश्चन भी सॉल्व करके दे सकता हूँ। यस, इज इट ओके जारिक? सिर्फ मैं आपको देख रहा हूँ जारिक आसिफ, मैं सिर्फ ओके, थैंक यू सर। ओके ओके, ऑन ने भी क्लियर कर दिया, ओके, इट मीन्स मैं ओके बेटा, ओके, थैंक यू थैंक यू। मैं इसको क्लियर कर रहा हूँ स्क्रीन को, और मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव कर रहा हूँ। तो मैं आपकी चॉइस से पूछना चाह रहा हूँ कि कौन सा आप पाना चाह रहे हैं, क्योंकि ये बेस थी जो, अगर मैं आगे मूव करता हूँ, इसी क्वेश्चन का सेकंड पार्ट देखता हूँ, तो सेकंड पार्ट है, देखिएगा सेकंड पार्ट, उसमें 3 टर्म्स हैं, 1/2 प्लस अंडर रेडिकेंड 3, एक टर्म ये होगी, प्लस 2 अंडर रेडिकेंड 2 ओवर अंडर रेडिकेंड 5 माइनस अंडर रेडिकेंड 3, फिर प्लस 1/2 अंडर रेडिकेंड 2। मैं इसको सिर्फ लिखकर आपको बताऊंगा, 1 प्लस 2 प्लस अंडर रेडिकेंड 3 प्लस 2 ओवर अंडर रेडिकेंड 5 माइनस अंडर रेडिकेंड 3 प्लस 1/2 प्लस अंडर रेडिकेंड 5। लुक, ये एक टर्म है, ये टर्म है, और ये टर्म है, ये भी उसी तरह ही होगा। आपने क्या करना है, इसको इसके कॉन्जुगेट से 2 प्लस अंडर रेडिकेंड 3, इसके कॉन्जुगेट से 2 माइनस अंडर रेडिकेंड 3 से आपने इसको मल्टीप्लाई और डिवाइड करना है। सिमिलरली इधर भी यही करेंगे, सिमिलरली इधर भी ये करेंगे। और आप जानते हैं कि ये भी बाइनोमियल थर्ड है, ये भी बाइनोमियल है, ये भी बाइनोमियल है। इट मींस आपको सेम पीछे वाला प्रोसेस रिपीट करना पड़ेगा। इसका थर्ड पार्ट देखिएगा, आई थिंक इट्स ओके, आई थिंक इट्स ओके, ये सेम प्रोसेस था, इसको बाय द एंड आप उसी तरह जाएंगे, थोड़ी सी चेंज आएगी क्योंकि वहां से 2 टर्म्स थी, यहाँ 3 टर्म्स हैं, थोड़ा सा चेंज जरूर आएगा, लेकिन आई होप इसे आप थोड़ी स्ट्रगल करके इसको सॉल्व कर लेंगे। और अगर फिर भी कोई क्वेरी हुई तो आप मुझे व्हाट्सएप पर, मुझे मेरा नंबर आपके पास है, आप सेंड करेंगे, देन डेफिनेटली मैं रिप्लाई करूंगा और नेक्स्ट डे में, नेक्स्ट लेक्चर में आपको जरूर डिलीवर करूंगा, ठीक है। लेकिन आज मैं इसे कंक्लूड कर रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 4 का थर्ड पार्ट वो भी सेम ही है, 2 ओवर अंडर रेडिकेंड 5 प्लस, फिर बाइनोमियल थर्ड है। मैं इसको नोट कर देता हूं ताकि आपके लिए थोड़ा कन्वीनियंट कर दूं, जो स्टूडेंट मेरे आवाज को सुन रहे हैं। यस सर, इट इज क्लियर सर, इंटरनेट का मसला था। ओके जिकी साइरस, नो प्रॉब्लम, आई होप अब सॉल्व हो गया होगा। कम टू द पॉइंट, अंडर रेडिकेंड 5 प्लस अंडर रेडिकेंड 3 प्लस 1 ओवर अंडर रेडिकेंड 3 प्लस अंडर रेडिकेंड 2 माइनस 3 अंडर रेडिकेंड 5 प्लस रेडिकेंड 3। अगेन हमारे पास 3 टर्म्स हैं, लेकिन ये 3 टर्म्स को आप इंडिविजुअल इसके सर्ट से, इसके कॉन्जुगेट से, या इसके रैशनल फैक्टर से मल्टीप्लाई कर देंगे। हम कॉन्जुगेट भी कहते हैं और रैशनल फैक्टर भी कहते हैं उसे, वी कैन से रैशनल फैक्टर और कॉन्जुगेट भी कह सकते हैं। सिमिलरली इसको भी इसके रैशनल फैक्टर से मल्टीप्लाई डिवाइड, इसको भी इसके रैशनल फैक्टर से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देंगे। इस तरह ये आपसे सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। अब मेरे पास जो रिमेनिंग टाइम है थोड़ा सा, उसमें क्वेश्चन नंबर 5 का कोई एक क्वेश्चन आप मुझसे सॉल्व करवा लें, ठीक है। मैं सर से रिक्वेस्ट कर लूंगा, मुझे 2-3 मिनट दे दें। किसी ने कुछ कहा, मुझे चैट बॉक्स में किसी का कुछ आ रहा है। फर्स्ट पार्ट, if x is equal to 2 प्लस अंडर रेडिकेंड 3, फिर ये सर्ड है, लेकिन इस सर्ड में ये रैशनल नंबर है और ये सर्ड है, लेकिन हम कहेंगे इसे बाइनोमियल सर्ड। फाइंड x
find x minus 1 over x and x minus 1 over x square. Okay, here we have x, we have 2 plus under radicand 3. Find x minus 1 over x and then x minus 1 over x whole square. My dear student, first what we have, x we have in hand, so we need to find first 1 over x. हमें 1 over x पहले डिराइव करना है, तो हम सपोज से स्टार्ट करेंगे 1 over x. हम उसी तरह ले लेंगे, अगर हमने x को 1 over ले लिया, सिमिलरली हम इसको भी, इसके बायनोमियल को भी, सर्ड को भी हम 1 over 2 plus under radicand 3 सपोज कर लिया. पहले हम x डिराइव करेंगे 1 over x. तो नेक्स्ट स्टेप what we will do, इसके conjugate से will multiply by its conjugate and similarly will divide by its conjugate. Now we have this will multiply by this, will get 2 minus under radicand formula, square of 2 plus minus minus under radicand 3 square. This will cancel with this. Now we'll get 2 minus under radicand 3 over 4 minus 3 and 2 minus under radicand 3 over 1. It mean हमारे पास जो डिराइव्ड वैल्यू आ गई इसकी, वो आ गई 2 minus under radicand 3. ये हमारे पास डिराइव्ड वैल्यू. अब आपके पास x भी है, x आपके पहले ही एग्जिस्ट कर रहा है, 2 plus x is equal to 2 plus under radicand 3 और 1 over x जो अभी एंड किया है वो है 2 minus under radicand 3. अब सिंपली आप x plus 1 over x को एड अप कर दें. इनके x गिवन है, ये है 1 over x, ये है, इनको एड अप कर दें. 2 plus under radicand 3 plus 1 over x, 2 minus under radicand 3. ओके, अब मैंने पैरेंथेसिस देने की कोई जरूरत नहीं थी, देयर वाज, लेकिन मैंने जस्ट आप लोगों की कंफ्यूजन ना हो इसलिए मैंने दे दिया. क्यों मैंने कहा क्यों नहीं देना, क्योंकि दरमियान में जो ऑपरेशन है वो प्लस है. प्लस इंडिकेट से साइन चेंज नहीं होते, तो आप डायरेक्ट भी लिख सकते, दे दें, फिर ये जरा अच्छा लगेगा. टीचर चेकर को किसी तरह की कंफ्यूजन क्रिएट नहीं होती कि स्टूडेंट के कॉन्सेप्ट बड़े. रेडिकैंड 3 प्लस साइन की वजह से अंदर साइन चेंज नहीं हो गया. 2 माइनस अंडर रेडिकैंड 3, देन विल गेट दिस 2 विल एड अप विद दिस 2, विल गेट 4 प्लस अंडर रेडिकैंड 3 माइनस अंडर रेडिकैंड 3 विल कैंसिल. सो हमारे पास आ गया 1 over x इज इक्वल टू 4. हमारे पास इसका रिक्वायर्ड आंसर आ गया. और अगर हम इसका स्केयर लेंगे तो फाइनली हमें क्या करना पड़ेगा, 1 अगर हम इसका स्केयर करेंगे, सॉरी मैंने ऐड अप कर लिया, नो प्रॉब्लम. मैंने इसको गिवन था माइनस, नो प्रॉब्लम, मैंने ऐड अप कर दिया. अब इसको सिंपली आप इसको इससे कंफ्यूज नहीं ना, ये भी आपका एडिशनल स्टेप हो गया, ठीक है. लेकिन अगर हम इसे सब्ट्रैक्ट करते हैं तो सब्ट्रैक्ट करते हुए हमें क्या करना पड़ेगा, सिंपली मैं इस स्टेप को इसी तरह चेंज कर रहा हूं, ठीक है. ये करेक्ट फॉर्म थी एडिशन के साथ. अब हम सब्ट्रैक्शन के साथ इसे कर लेते हैं. ओके, माइनस साइन यूज करेंगे तो माइनस लगाने, माइनस के लिए हमें पैरेंथेसिस जरूर लगाने हैं. अब मैंने ये नहीं कहा कि आप पैरेंथेसिस यूज ना करें, मैंने कहा पैरेंथेसिस जरूर यूज कर लें, इससे कन्वीनियंट हो जाता है. जो आपकी अब थोड़ा मैस क्रिएट हो जाता है वो मैस खत्म हो जाएगा, कन्वीनियंट हो जाएगा, चेकर को समझने में आसानी रहेगी. तो इजीली आप एक्सपैंड करते हैं इसको. इसके बाद तो पहले से प्लस साइन एग्जिस्ट कर रहा है, तो इस प्लस साइन की वजह से हम इसे ऐसे ही एक्सपैंड कर लेंगे. 2 प्लस अंडर रेडिकैंड 3, माइनस की वजह से हम साइन चेंज कर देंगे, -2 माइनस माइनस प्लस अंडर रेडिकैंड माइनस माइनस प्लस अंडर रेडिकैंड 3. Now we can cancel plus 2 minus 2. Now we have under radicand 3 plus under radicand 3. अगर आपको याद हो तो पिछले क्वेश्चन में मैंने आपको करवाया था कि इसके बाहर भी 1 जो है वो एग्जिस्ट कर रहा है एज ए रैशनल नंबर. सिमिलरली इसके बाहर भी 1 एग्जिस्ट कर रहा है रैशनल नंबर. तो हम क्या करेंगे, हम इसको एड अप करके लिख देंगे 2 under radicand 3. इस तरीके से हमारे पास ये सोल्यूशन आ गया. ओके, अब फाइनली हमने ये सॉल्व करना है, तो हम इसे लिखेंगे x माइनस 1 ओवर x, इसका स्केयर कर देंगे, स्केयर, तो इधर भी स्केयर करना पड़ेगा, इसका भी स्केयर करा किया हमने. इसको स्केयर को एक्सपैंड करने की कोई जरूरत नहीं, आप सिंपली इसके स्केयर को एक्सपैंड कर दें. स्केयर ऑफ 2 मीन दिस स्केयर इज लाइंग ऑन दिस रैशनल नंबर एज वेल एज ऑन दिस रेडिकल वैल्यू. इस रेडिकल वैल्यू पर भी है, इस पर भी है, तो हम सिंपली कर सकते हैं स्केयर ऑफ 2 is 4, whereas
तो आपके पास सिंपल 3 आ जाएगा और 2 इसका आ जाएगा 12 इसका आंसर आ जाएगा. I hope this is the yes. This is the answer. X minus 1 over x whole square is required answer is 12. If it is clear, let me know please. अगर क्लियर है तो माइक ऑन करके यस थैंक यू. अगर माइक